میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے اہم فون کال کی تفصیل، کس نے اختلافات بھلانے کی صلاح دی اور بے گناہ نوجوان کے قتل کی تفتیش میں کون سا نیا بھید کھلا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوری کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو شدید دھند اور سموگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ رات اور صبح کے علاوہ دن کے اجالے میں بھی شام کا سما محسوس ہوتا رہا۔ حد نگاہ اس قدر کم ہوئی کہ موٹر وے کے انٹرچینجز بند کرنے پڑے، گاڑیوں کی رفتار سست ہو گئی، ٹرینوں کے پہیے جام ہونے لگے اور فلائٹ آپریشنز روکنا پڑا۔ طیارے فضا میں چکر لگاتے رہے لیکن مناظر دھندلے ہونے کی وجہ سے زمین پر نہ آ سکے۔ نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا، پنجاب کے بیشتر شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زندگی کا نظام مفلوج، لاہور ایئرپورٹ کا فلائٹ سسٹم بھی دھند میں پھنس گیا۔ لاہور رن وے پر حد نگاہ 50 میٹر تک رہی، کئی پروازوں کے شیڈیول متاثر ہو گئے، ٹرینوں کو بھی بریک لگ گئی۔ پنجاب کے کئی شہر دھند کی لپیٹ میں رہے، جس کے باعث بعض مقامات پر حد نگاہ انتہائی کم رہی۔ لاہور، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں دن کے وقت بھی شام کا سما رہا۔ ہائی ویز اور موٹر وے پر سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ شدید دھند کے باعث M2 M3 موٹر وے کئی مقامات پر بند ہونے کے باعث GT روڈ پر ٹریفک کا دباؤ رہا۔ کوٹ رادھا کرشن اور ٹوبا ٹیکسنگ میں دھند کے باعث گاڑیاں آپس میں ٹکرانے سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں اسکول وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 3 طلبہ زخمی ہوئے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ظہیر احمد بابر کہتے ہیں کہ سموگ ابھی کہیں نہیں جانے والی، موسم سرد اور خشک رہے گا۔ فی الحال تو ملک کے زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ خشک اور سردی کی لپیٹ میں ہیں اور مزید 3 سے 4 روز کے دوران بھی کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے۔ موسم بدل گیا مگر باغوں کا شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر برقرار رہا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس پھر بھی 304 ریکارڈ کیا گیا۔ شدید دھند میں ہو گئے راستے گم، موٹر وے کئی مقامات پر بند ہے اور ہائی ویز پر سفر کرنا بھی چیلنج بن گیا ہے۔ کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں۔ لاہور کے داخلی راستے ٹھوکر نیاز بیگ پر موجود ہیں ہمارے نمائندے حسن خالد۔ حسن بتائے گا موٹر وے پر کیا صورتحال ہے دھند کی؟ جی ہاں، لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت شدید دھند کا راج ہے اور دھند کی وجہ سے حد نگاہ جو ہے وہ بھی انتہائی متاثر ہو گئی ہے۔ حد نگاہ اس وقت 30 سے 40 میٹر تک صرف رہ گئی ہے اور موٹر ویز کو عام ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے شیخوپورہ تک، M3 کو لاہور سے سمندری تک، لاہور سے سیالکوٹ تک موٹر وے بھی عام ٹریفک کے لیے بند ہے۔ حد نگاہ جو ہے وہ اس وقت انتہائی کم ہے۔ محکمہ موسمیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ جوں رات ڈلتی جائے گی دھند کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے بجانب اگر آپ راول ٹول پلازا کی طرف جائیں تو ٹرکوں کی اور گاڑیوں کی طویل لمبی قطاریں ہیں کیونکہ موٹر وے عام ٹریفک کے لیے بند ہے اور لوگ جو ہیں وہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ون وے ٹریفک کے ذریعے جو ہے وہ ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ ٹریفک روانگی بھی سست روی کا شکار ہے۔ موٹر وے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ موٹر وے پر سفر کرنے والے حضرات جو ہیں وہ دوران سفر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں، اپنے سامنے والی گاڑی کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھیں، گھروں سے نکلتے وقت موٹر وے کی ہیلپ لائن پر کال کر لیں تاکہ ان کو معلومات جو ہیں وہ فراہم ہو سکیں کہ آیا کہ موٹر وے کھلی ہے یا بند ہے۔ اور موٹر وے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی حد نگاہ میں بہتری آئے گی اور دھند کے بادل چھٹ جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ موٹر وے کو عام ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن خالد آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ شدید دھند نے طیاروں کو بھی بریک لگوا دیے، لاہور ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہے اور پروازوں کے رخ موڑ دیے گئے۔ فلائٹ آپریشنز کی اپڈیٹ لیتے ہیں لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود 24 نیوز کے نمائندے علی اکبر سے۔ علی بتائے گا فلائٹ آپریشنز کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت میں لاہور ایئرپورٹ میں موجود ہوں اور دھند نے لاہور ایئرپورٹ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اگر ویزیبلٹی کی بات کی جائے تو لاہور ایئرپورٹ پر جو ویزیبلٹی ہے وہ 50 میٹر ریکارڈ کی گئی ہے اور ویزیبلٹی نہایت کم ہونے کی وجہ سے لاہور ایئرپورٹ کا جو رن وے ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور ٹیک آف اور لینڈنگ دونوں کے لیے اس کو بند کر دیا گیا۔ اگر فلائٹ آپریشن کی بات کی جائے تو ویزیبلٹی نہایت کم ہونے کی وجہ سے فلائٹ آپریشن نہایت متاثر ہو چکا ہے اور فلائٹ آپریشن کی بات کی جائے تو کراچی سے آنے والی پرواز PA 406 کا رخ اسلام آباد موڑ دیا گیا ہے اور کراچی سے لاہور ٹیک آف کرنے والی پرواز PF 145 کو واپس کراچی اتار لیا گیا۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹورنٹو سے لاہور آنے والی پرواز PK 790 کا رخ بھی اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مسافر ہیں وہ نہایت پریشان ہیں کیونکہ ایئرپورٹ پر جو فلائٹ آپریشن ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور مسافروں کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تاخیر کا سامنا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور دھند کے باعث سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر رہا جبکہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں میاں اشفاق سے۔ میاں اشفاق بتائے گا دھند کی کیا صورتحال ہے یہاں پر؟
मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी मामूलात ज़िंदगी धुंध की वजह से मुतासिर हुए हैं और बिलखसूस वो अफराद जो सफ़र कर रहे हैं, खा फ़िज़ाई सफ़र हो या मोटरवे के ज़रिए सफ़र हो, दोनों जो मुसाफिर हैं वो मुतासिर हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर आज सुबह 2 फ़्लाइट जो हैं वो धुंध की वजह से जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई थी। उनके शेड्यूल को जो वो रद्दोबदल किया गया था। अब से कुछ देर बाद भी सियालकोट एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की एक फ़्लाइट शारजा से सियालकोट आनी थी और यहीं से वो दोबारा 10 बजे शारजा के लिए उसने उड़ान भरनी थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई है और अब वो ताख़ीर के बाद कल दोपहर 2:30 बजे जो है वो पहुंचेगी। मोटरवे की बात की जाए तो मैं इस वक्त सियालकोट मोटरवे पर मौजूद हूं और यहां पर जो ट्रैफिक है इसको लाहौर के लिए मोटरवे को जो है वो बंद कर दिया गया है। धुंध जो है वो शहरी इलाकों में निस्बतन कम है, लेकिन जैसे जैसे शहर से आप बाहर निकलते हैं तो धुंध बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मोटरवे इंतज़ामिया और हाईवे पुलिस की जानिब से शहरियों को सफ़र करने से जो है वो मना किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ये जो धुंध है इसकी वजह से सियालकोट और इसके कुर्बो जवार के जो अफराद हैं वो शुरू हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां इशफाक आपको बताएं कि धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। लाहौर से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की परवाज़ EK625 मनसूख कर दी गई। टोरंटो से लाहौर आने वाली परवाज़ PK790 और कराची से आने वाली परवाज़ PA406 को इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है। सईद बताएगा और कौन सी परवाज़ें मज़ीद रोकी गई हैं? एयरपोर्ट के तराम से शदीद धुंध के बायस रनवे के ऊपर जो खत्ते निगाह है वो 50 मीटर रह गई है, जिसके बाद लाहौर से आने वाली और लाहौर से टेक ऑफ करने वाली परवाज़ों को जो मुकम्मल तौर पर उसके लिए फ्लाइट मिशन है वो बंद कर दिया गया है और ज़राए के मुताबिक 3 परवाज़ें मनसूख और 2 का रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ मोड़ा गया है। कराची से आने वाली परवाज़ PK306 और कराची जाने वाली परवाज़ PK307 को है वो मनसूख किया गया, जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज़ PK235 को भी मनसूख कर दिया गया है। इस तरह मस्कत से लाहौर आने वाली परवाज़ PK230 का रुख इस्लामाबाद मोड़ा गया है और दुबई से आने वाली परवाज़ PA411 का रुख भी इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है और दूसरी तरफ PIN जो है वो लाहौर से दीगर ममालिक के लिए ऑपरेट की जाने वाली परवाज़ों को लाहौर की बजाय इस्लामाबाद से ऑपरेट करने का फैसला है वो किया है और इस वजह से मदीना से लाहौर की परवाज़ PK9716 को लाहौर की बजाय इस्लामाबाद से है वो ऑपरेट किया जाएगा और इसके साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। और अब मुल्क के सियासी मौसम की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्टी जितनी जल्दी मुमकिन हो इख्तलाफात ख़त्म कर ले। शाहिद खाकान अब्बासी के माजी के बयानात इन्हीं इख्तलाफात की अक्कासी करते हैं। उन्होंने दावा किया कि हुकूमती वज़ीर ने लंदन से फ़ोन करके पार्टी में शामिल होने की दरख्वास्त की। वज़ीर ने कहा कि मेरे साथ 12 अरकान हैं, नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। वज़ीर ने घुटने को हाथ लगाकर दरख्वास्त की कि मेरा नाम किसी को पता न चले। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 18 से 25 हुकूमती अरकान हमारे साथ थे। इन अरकान को बाद में फ़ोन करके हुकूमत को वोट देने का कहा गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वज़ीर आज़म के लिए पार्टी के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। रिवायत यही है कि पार्टी सदर उम्मीदवार होता है। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का सवाल इलेक्शन जीतने के बाद उठता है। मैं कह रहा हूँ शहबाज साहब ही हमारे उम्मीदवार होंगे। ये पॉलिसी नहीं है, ये रवायत है। ये रवायत है कि जो पार्टी का सदर होता है वही पार्टी का उम्मीदवार होता है, लेकिन ये फैसले पार्टी करती है। बेशक ये अगर मुझसे आप आज पूछेंगे ना तो मैं इसका जवाब आपको मुस्तकिल जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चूंकि आप सवाल कर रही है कि कौन होगा उम्मीदवार, तो शहबाज साहब होंगे उम्मीदवार। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं, अक्सरियत होती है, फिर ये फैसले किए जाते हैं। ख्वाजा सिर्फ जो कह रहे हैं कि जी अगर किसी वजह से शहबाज साहब ना हो तो शायद खाकान अब्बासी होगी, वो भी अपने दिल की बात सुना रहे हैं या अपनी मर्जी सुना रहे हैं? आफ्टर ऑल देयर मस्ट बी सम डिस्कशन इन द पार्टी। ये उनकी मोहब्बत है, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने टेलीफोन किया। मियां नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नवाज शरीफ ने चौधरी परवेज़ इलाही से गुफ्तगू में कहा कि आप और चौधरी शुजात जब भी लंदन आएँ तो मुलाकात ज़रूर करें। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से मियां नवाज शरीफ को मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सत्तर की शादी की मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को टेलीफोन। जनरल कमर जावेद बाजवा ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की।
आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दुआ है अल्लाह ताला चौधरी शुजात हुसैन को जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल ना हो सका। हुकूमत ने 11 रुपये पेट्रोल सस्ता करने के बजाय सिर्फ 5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। आवाम को 12 अरब रुपए का रिलीफ नहीं दिया गया। 5 रुपये कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपये 82 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। रात 12 बजे के बाद हाई स्पीड डीजल 137 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर में मिलेगा। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे टॉप स्टोरी। पाकिस्तान सबसे सस्ता नहीं सबसे महंगा मुल्क है। स्टेट बैंक ने हुकूमती दावों का भांडा फोड़ दिया। वो कैसे, इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ही नहीं सिर्फ दुनिया का महंगाई है। तो पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। सुना आपने वजीर आजम क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान सबसे सस्ता है। मगर स्टेट बैंक वाले शायद उस बाजार से खरीदारी नहीं करते जहां से वजीर आजम करते हैं। उन्हें तो सब कुछ ही महंगा नजर आ रहा है, सबसे महंगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। नवंबर में पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 11.5% रही, जो श्रीलंका को निकालकर दूसरे मुल्कों की शरह के दोगुने से भी ज्यादा है। श्रीलंका की महंगाई की शरह भी पाकिस्तान से कम ही है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में भारत में महंगाई की शरह 4.5% और चीन में 1.5% रही। श्रीलंका में नवंबर के दौरान महंगाई की शरह 9.9% रही। मलेशिया में 2.9%, इंडोनेशिया में 1.8%, थाईलैंड में 2.7% और जनूबी कोरिया में 3.7% रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में बांग्लादेश की महंगाई की शरह नहीं बताई। ताहम बांग्लादेश के मरकजी बैंक के मुताबिक बांग्लादेश में गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह पहले से थोड़ी कम होकर 5.4% रही। पाकिस्तान सस्ता नहीं महंगा मुल्क है। स्टेट बैंक ने हुकूमती दावों पर पानी फेर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में नवंबर में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा 11.5% रही। मज़ीद जान लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा क्या कहना है मरकजी बैंक का? स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में खुद इंकशाफ किया है कि नवंबर में महंगाई की शरह जो औसत शरह है 11.5% रही है और दीगर मुल्कों से मवाजना भी किया है, जिसमें देखा जाए जो ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें जो बताया है स्टेट बैंक ने खुद कि दीगर मुल्कों में सिर्फ श्रीलंका को हटा के दीगर मुल्कों को देखें तो उसमें दुगने से भी ज़्यादा है पाकिस्तान में शरह सूद। और इसमें अगर देखें महंगाई की जो शरह है श्रीलंका को अगर देखा जाए तो 9.5% रही है और दीगर मुल्कों में रिपोर्ट जो बताया कि नवंबर में भारत में महंगाई की शरह 4.5% रही है, चीन में 1.5% रही है, श्रीलंका में नवंबर के दौरान जो महंगाई की शरह 9.9% रही है, मलेशिया में 2.9% रही है, इंडोनेशिया में 1.8% रही है, थाईलैंड में 2.7% रही है और जनूबी कोरिया में 3.7% रिकॉर्ड की गई है। और स्टेट बैंक ने बांग्लादेश की महंगाई की शरह नहीं बताई है। ताहम बांग्लादेश के मरकजी बैंक के मुताबिक जो डाटा मिला है गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह पहले से थोड़ी कम हुई है, जो कि 5.4% हुई है। महंगाई की शरह अगर देखें पाकिस्तान में 11.5%, उसका इम्पैक्ट देखें पिछले साल के मुकाबले इस दफ़ा जो महंगाई है यानी कि दीगर अशिया की कीमतों 11.5% महंगी होगी, जो आवाम के ऊपर जो बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जी, शुगर स्कैंडल का मुर्दा फिर जिंदा हो गया। हुकूमत की अपनी सफ़ों में फिर आवाज़ें उठने लगीं। फैसल वावडा ने अपनी हुकूमत के लोगों पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। कहा कि चीनी के मामले पर मिस मैनेजमेंट और मिस रिपोर्टिंग हुई। जिन 2 लोगों ने ब्रीफिंग दी और फैसले किए उनको सजा देनी चाहिए, जुर्माना करना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं कि मामला इतना सादा नहीं जितना बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल को खिफ़त का सामना। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में खातून प्रोफेसर ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फौजिया ने अपने बयान में कहा कि शहबाज गिल मुआविन मेहमान ख़ुसूसी बनने के लायक नहीं, वो उनसे डिग्री वसूल नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल के लिए सुख की कलम। एक एसोसिएट प्रोफेसर ने मुआविन ख़ुसूसी से डिग्री लेने से इनकार कर दिया। किस्सा है लाहौर कॉलेज बराए खवातीन के 16वें कॉन्वोकेशन का। दूसरे रोज दूसरे सेशन के मेहमान खुसूसी बने मुआविन खुसूसी शहबाज गिल, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस समनाबाद कॉलेज डॉक्टर फौजिया ने शहबाज गिल से PhD की डिग्री लेने से इनकार कर दिया।
मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ये कहकर मामले की शिद्दत को कम करने की कोशिश की कि ये डॉक्टर फौजिया का जमहूरी हक है कि वो जिससे चाहे डिग्री वसूल करें। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने डिग्री लेने से इनकार कर दिया कि आपसे डिग्री नहीं लेनी। सर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मुल्क में जमहूरियत है, हर एक का हक है। डॉक्टर फौजिया ने डिग्री न लेने से मुतालिक ट्वीट भी किया। कहा मामले खुसूसी शहबाज गिल LCWU कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी बनने के लायक नहीं, वो इनसे डिग्री वसूल नहीं करेंगी। कराची में पुलिस के हाथों नौजवान अरसलान के कत्ल केस की उलझी घुतियां सुलझने लगीं। मकतूल पर जो पिस्तौल रखकर मुकाबला जाहिर किया गया वो SHO आजम गोपांग ही की थी। पुलिस ने मुलजिम का रिमांड हासिल कर लिया। और कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर अरसलान महमूद के कत्ल के खिलाफ किया जाने वाला एहतजाज खत्म कर दिया गया। यह एहतजाज 4 घंटे तक जारी रहा। DIG वेस्ट ने मुजाहिरीन को इंसाफ की फराहमी यकीन दहानी कराई। मौसम सरमा की तातीलात दिसंबर में नहीं बल्कि जनवरी में होंगी। जनवरी के आखिर में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में सूबों से सिफारिशात ली गई, जिसके बाद मुत्तफ़िका तौर पर तालीमी इदारे जनवरी के आखिर में बंद करने का फैसला किया गया, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट की हदूद में कायम निजी स्कूल ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 31 दिसंबर तक स्कूलों की इमारतें खाली कराने की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क भर के 30,000 निजी स्कूल ख़त्म होंगे। फैसले का असर 40 लाख से ज़ायद तलबा और 3 लाख असातिज़ा पर होगा। लाहौर में कैंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने अदालत से फैसले पर नज़रसानी की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी जामियात के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत उस्मा ने हायर एजुकेशन कमीशन को गैर कानूनी कैंपस के तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां देने की हिदायत की और पाबंद किया कि मुल्क भर में HEC की यकसा पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये भी कहा कि अगर हायर एजुकेशन कमीशन कमज़ोर है तो वफाक को कवानीन में तरमीम का हुक्म देंगे। जस्टिस उमराता बंदयाल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त और हकाइक पर मबनी फैसला दिया। मुल्क भर में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खाद नायाब होने से किसान परेशान हैं। मौसम सर्द होते ही मुल्क के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। कागान, नारान, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद समेत दर्जनों तफरीही मकामात बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहे हैं। चोटियाँ, झीलें और सड़कें सफ़ेद बर्फ़ के नीचे दब गई हैं। जहां तफरीह के शौकीन मौसम की दिलकशी से महजूज हो रहे हैं, वहीं मुश्किलात का शिकार मकामी लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शिमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला क्या शुरू हुआ? तफरीही मकामात खूबसूरत नजारे पेश करने लगे। पहाड़ी चोटियों, झीलों और सड़कों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कागान, नारान, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद समेत दर्जनों सयाहती मकाम शायकीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। एक तरफ तो लोग मौसम की दिलकशी से महसूस हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मकामी लोगों के लिए जिंदगी का निजाम सुस्त रवि का शिकार हो गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में शदीद सर्दी की लहर, 24 घंटों से बिजली गायब, LPG गैस के साथ साथ लकड़ी भी नापैद, सड़कों पर बर्फ जम जाने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, मकामी अफराद पैदल सफर करने पर मजबूर। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।